Hello, a very good afternoon to each one of you. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji Ke Saas Gurwar 2.0 that we restarted on 10th of April 2025 under the mentorship of our Guruji Dr. Liaquat Namole sir. I would like to share a few words about PHF. PHF, that is Promisolon Homeopathic Forum, which was founded by Dr. Liaquat Amole sir with the vision to educate homeopaths and to transform GPs towards homeopathy again. And he is successful in transforming more than 2000 GPs towards homeopathy. We organize various activities regularly so that we can reach to maximum homeopaths who are not able to practice homeopathy due to lack of proper guidance. Ignited Minds by PHF is the pioneer group of free learning of homeopathy, first started on WhatsApp and then on Telegram. Now about 3000 doctors are learning daily on Telegram group. Recently, we completed pre-webinar series of 100 lectures on Zoom, which are available on our YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF. And now we are sharing a new series of lectures, What Women Want, to explore woman's heart, emotions, needs to be able to heal her. We have already shared many emotions in the last few lectures, and we will be learning with today's speaker, that is Dr. Manoj Jaiswal sir. So I'm, it is my great pleasure to introduce today's speaker, Dr. Manoj Jaiswal sir. Dr. Manoj sir from Siliguri, the gateway of Eastern India. He grew up in a family where both medicine and literature were deeply valued, and because of that, he has been connected with homeopathy since his childhood. He completed his DHMS from Pratap Chandra Homeopathic Medical College and Hospital, Kolkata, and began his successful clinical practice in Siliguri, following the principles of classical homeopathy. A turning point in his professional journey came when he met Dr. Abhay Kumar. Initially, Dr. Jaiswal was hesitant to learn the mind method. However, when his own son suffered from a persistent fever that did not respond to treatment for over 10 days, Dr. Abhay Kumar suggested Hyoscyamus and his son recovered remarkably. That experience completely changed Dr. Jaiswal's perspective. Determined to learn this approach, he traveled 32 kilometers every day, 16 kilometers each way, early every morning to train under his mentor. He considers that decision to be the true turning point of his life and remains grateful for Dr. Abhay Kumar's continued guidance and mentorship. Today, Dr. Manoj Jaiswal is here to share his valuable clinical experience and insights with all of us. So let us welcome Dr. Manoj sir with a huge round of applause. Welcome, sir. Over to you. क्या पढ़ दिया तुमने? Myself in this group, my cases in this group, and I am very grateful to the Liaquat Bhai. He's always my dada and always my inspiration, and is very humble. So he's doing a great work in the field of homeopathy to spread the homeopathy. So, and he has chosen a very great, nice topic, what women want. तो ऐसा होता है कि बहुत बार एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, विशेषकर आफ्टर मैरिज इन औरतों के लाइफ में,
कई बार उनके हिसाब से सारी चीजें नहीं होती, उनको एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जमना होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वो चाहती हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता, और वहां से प्रॉब्लम कई बार शुरू होती है। तो मेरे आज के इस केस में मैं कोशिश करूंगा कि शायद इस टॉपिक को थोड़ा टच करते हुए जाए। तो शुरू करते हैं आज का केस विद पेइंग ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सैमुअल हेनीमन सर, डॉक्टर एम एस सहगल सर, डॉक्टर अभय कुमार सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर राव सर, and Dr. Liaquat sir, and Dr. Mahesh Chandra sir, and all the legends from with whom I am learning every day. So thank you again. And now I'm just going to present the case. And it is a case of a 29-year-old female. It's an old case. I have seen it in 2017, November 2017. Usually this lady was a very plumpy and young lady, a little plumpy, fair, complexion was very fair, very uh, very nice in talking. And she came to me for the treatment of delayed irregular menstruation. And she has already done 2 courses of hormonal therapy, but without result. So I asked, when did it started? She replied, first time it happened in November 2016, when there was a gap of 60 days. So I got frightened. OMG, what happened? Do I have something serious? कुछ खतरनाक तो नहीं होगा, कुछ बड़ी बात तो नहीं हो गई? तो she was giving an impression of astonished feeling. You can take or not take, it's your decision. But at that time, that face was giving that type of reaction. कुछ हो तो नहीं क्या मुझे? कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? So I asked, is there any incident happened within 2-3 months before this problem which affected you deeply? She replied, I was working in a company and I was working in a company of Kolkata, and everything was going very fine. But from the last 2 months, company was not giving me salary. So we thought there must be some problem and we'll get it later on. So company will give the problem because might be is suffering from some financial crisis, so is not giving the salary. It was her thought. But one day suddenly they fired me out of the work and did not pay even a penny for the last 2 months' work. So it was very shocking. It was very shocking. That money was for my hard work. So I got disturbed completely for quite a long days, and I almost got in the depression. And actually this company was a foreign based company, so she could do nothing to get her money, because there was no option, such option was there. So I asked how your married life is going on. And I asked it because she is being married recently, less than 1 year ago. Before that, even she used to come to me for the treatment of different problem. And his father was also my patient. So she said, husband is fine. He usually support me. Husband is fine. He usually support me. But my mother-in-law is used to abuse a lot without any cause.
without any cause she used to abuse me. And I also protest, ये भी चुप नहीं रहती है. I also protest where she is wrong, but not all the time. So why? Just to maintain the harmony, but that is causing antagonism with myself. कि मैं गलत बात कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? जो गलत है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए. तो जब नहीं कर पाती हूँ तो मुझे मेरे मन में बहुत द्वंद्व चलता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ. मुझे विरोध तो करना चाहिए ना, जब गलत है तो उन्हें गलत बताना चाहिए ना. तो ऑल दीज थॉट्स आर गोइंग ऑन, यूज्ड टू गो विद इन हर सेल्फ. वो फिर वो दिमाग जो है टर्मोइल हो जाता है उसका. इज दैट द पोजिशन ऑफ सो मच एडुकेटेड गर्ल? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं और मेरी यह पोजीशन है कि मैं घर का काम नहीं कर सकते, मुझे इनसे सीखना पड़ेगा. आई हैव टू लर्न विथ एन अनएडुकेटेड फेलो हाउ टू डू डोमेस्टिक वर्क. नाउ आई हैव एडजस्टेड विथ मदर इन लॉ and also adjusted with the depression of money loss. But as I am not getting salary, so my financial dependency is lost. Though husband never asks anything for the money I need, and she laughed. तो वो हंसी जो थी ना, कुछ और ही अलग ही हंसी थी. वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे मांगना पड़ता है हस्बैंड से बार बार. सो मैंने पूछा कि सो आर यू नॉट डूइंग एनी जॉब एल्सवेयर और नॉट जॉब एल्सवेयर? Yes, I am looking for the job where I could get a good amount of money and so that I can manage the money lost. तो मैं ऐसा जॉब ढूंढ रही हूँ कि मुझे इतनी अमाउंट मिले कि मैंने जो खोया है वो भी पूरा हो जाए, और मैं ऐसा करूंगी. एंड आई विल डू दैट, शी सेड वेरी कॉन्फिडेंट. शी सेड वेरी कॉन्फिडेंटली. मैंने बोला पसीना कैसा आता है? बहुत ज्यादा पसीना आता है. शी वाज, और मैंने कल के कार की तरह थी, फेयर फैटी फैबला भी जब बोल सकते हैं, बट वेरी और ब्यूटी. बहुत सुंदर लुक था उसका, वेरी नाइस. So I gave 0/1 once daily for 15 days. And she remained completely better, well, up to the December 2017. And again, the problem started. Then I have given further potency for 3 months. 3, 4, 2, 3, 4 for every month. So she reported May 2018. She is very much better. Again, she was given the medicine for 1 month, and after that till today, she never had such problem. And she is on a very lucrative job where she is getting a very good amount of salary. And she is very satisfied. And also when she came, she was looking very slim, just like a young girl. शादी के पहले वो मोटी सोटी थी, शादी के बाद इतने अपने को स्लिम कर लिया, जिम वगैरह करके एकदम उसको टारगेट कर लिया कि मुझे करना ही है, और बहुत अच्छा मेंटेन किया है उसने. उसके बाद वो अपने बच्चे भी हैं उसके, अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए भी आई थी जस्ट रिसेंटली, फ्यू फ्यू मंथ, सॉरी 1 या 2 साल पहले आई थी. तो दिस इज द केस. तो अब आप लोगों को क्या लगता है? कि आप लोग बताएंगे या मैं डायरेक्ट एनालिसिस बताऊं, या कोई बताएंगे क्या आप लोगों को क्या लगा? हेलो.
हेलो, हाँ डॉक्टर मानसी। जी सर। हाँ, कोई एनालिसिस देगा या मैं डायरेक्ट उसको हाँ, अगर कंप्लीट कोई करूँ? बोलना चाहता है तो वी कैन टेक। क्या लगा इस केस में, क्या मेडिसिन होनी चाहिए? थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे तो सीखेंगे। हाँ, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। हेलो सर। सर वो बहुत एम्बिशियस है और बहुत इंडिपेंडेंट है। शी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट। म्यूट हो गए सर आप। हाँ हेलो, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। करम, बोलो। हेलो सर, शी साउंड्स वेरी एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस है और वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। शी इज वेरी इंडिपेंडेंट यस, लेडी। वेरी नाइस। तो मेडी क्या लग रही है आपको? She is very determinative as well, and it seems egoistic as well because she said that I have to learn some domestic works, like my mother-in-law, who is uneducated one. जब तो ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या रेमेडी आ रही है आपकी? हेलो। और कोई अपना एनालिसिस देंगे? हेलो, इनजस्टिस किसी ने लिखा है। यस डॉक्टर मेहता। नमस्ते सर। सर ये लेडी बहुत इंडिपेंडेंट है, ईगोइस्टिक लगी और किसी पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, लेकिन एलमेंट्स उसके एलमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग से स्टार्ट हो गए थे उनका। यस। तो हाँ, तो हॉटी ईगो, हॉटी एलमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग एंड इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, और एलमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, क्यों डिसअपॉइंटेड हो गई थी बिकॉज जॉब भी उसका छूट गया सडनली, एंड ये एंजाइटी डार्क इन लगा सर, बिकॉज ये मुझे क्या हो गया है। शी वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हर कंडीशन। तो सर ये नेट्रम्यूर का फील आ रहा है। नेट्रम्यूर वांट टू बी डिपेंडेंट, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, हार्मनी डिजायर भी है, कभी कभी खुद को रोक लेती है फ्रॉम मदर इन लॉ से, कभी कुछ ये हो जाए तो बैकफुट पे भी आ जाती है सर। तो नेट्रम्यूर बिल्कुल। और थोड़ा नक्सोमिका का भी फील आ रहा है, एम्बिशियस एम्बिशियस है, और एंटागोनिज्म से ज्यादा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट और नेट्रेम्यूर, राइट? यस सर। तो दोनों बहुत अलग रेमेडी है ना, दोनों का अडेप्टेशन, दोनों का रिएक्शन बहुत अलग है। हाँ इन सर, दोनों में से कौन सी आप ज्यादा प्रेफर आपको लग रहा है कि ज्यादा क्लोज होनी चाहिए? ज्यादा प्रिफर सर नेट्रम्यूर। नेट्रेम्यूर। बिल्कुल। लेकिन नेट्रेम्यूर का इस तरह से बताएगी यूजुअली अपनी बातों को बहुत क्लियरली, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया, तो या इस तरह की बातें यूजुअली बोलेगी, हो सकता है, लेकिन बोलेगी क्या? मैं ये नहीं वैसे कहता तो कि सर, नेट्रेम्यूर नहीं हो सकता है, लेकिन ये मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, रिजर्व तो है। नेट्रम्यूर इज वेरी, मतलब खुद का तो बिल्कुल नहीं बताना चाहती, पीटी नहीं चाहिए इस वजह से किसी से। हाँ। तो बट
तो क्या आप नेटवर्क में रहेंगे या थोड़ा सा चेंज करेंगे? तो मैं नेट्रम म्यूट से ही ज्यादा जाऊंगी बिकॉज शी इज एबल टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ, और वापस उसने जॉब लेने का कॉन्फिडेंस है, सब है। हाँ, कॉन्फिडेंट बहुत है। So she's very positive as well कि मैं लेके ही जॉब लेके ही रहूंगी. She's very Yes. determined and positive. Yes. पॉजिटिव लगी आपको ना? हाँ, बहुत डिसिसिव है। तो उसने कॉन्फिडेंस भी था ना कि मैं कर लूंगी, मैं ऐसा जॉब पाऊंगी जिसमें अच्छी सैलरी भी होगी और पूरा मेकअप भी हो जाएगा। हम्म। ठीक है, और कोई बताएंगे? और कुछ किसी को आ रहा है? चैट में किसी ने प्लेटिना लिखा है और प्लेटिना क्यों लगा? प्लेटिना बताइए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। delusion, ordinary business he is doing, 40 plumber mid. ऑर्डिनरी बिजनेस इज डूइंग, लेकिन यहाँ बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे ना। उसने क्या कहा कि उसको अभी वो जॉबलेस हो गई। तो जॉबलेस होने के कारण से क्या हुआ, इसके अपने खर्चे के लिए इसके पति को बोलना पड़ता है। हालांकि पति कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करता, दे देता है इसको आराम से, लेकिन फिर भी इसको लग रहा है कि मेरी अपनी चीजें होनी चाहिए, मैं खुद डिपेंडेंट होती ना तो ये बात नहीं होती। ये इसके दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। डॉक्टर नैन्सी ने लिखा है egoistic injustice cannot tolerate. और हेलो, यस। नेट्रम कार भी लिखा है, कार कार भी फ्लफी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, नाइस। पैशन फॉर मनी, egoistic एंड डिग्निफाइड. यस, यस, पैशन मैंने मनी तो है इसके लिए, कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां से इसकी प्रॉब्लम, एक तो वो भी इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई उसका एक कारण हो सकता है। अच्छा सोच रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? और कोई अपना इनपुट देंगे? अब्यूज भी है ना सर, उसने बोला वो उसकी मदर इन लॉ अब्यूज करती है, ऐसा कुछ. हाँ, उसकी मदर इन लॉ अब्यूज करती है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब्यूज वाली बात है। अब्यूज, और लेकिन वो भी उसको सहती नहीं है, उसको भी वो भी दे देती है, मदर इन हाँ लॉ को हो वो जाए भी ना। वोट करती है, हाँ. वो भी, हाँ, लेकिन हम्म. एक लेवल से उसने क्या किया कि धीरे धीरे करते करते अब उसने अपने को एडजस्ट कर लिया है। यानी जहां बोलना होता है बोलती भी है, हम्म. और कई बार सह भी जाती है ताकि उससे हार्मोनी खराब ना हो घर का। ये उसकी ये है कि घर में माहौल हम्म. भी अच्छा भी रहना अच्छा चाहिए। रहे, हाँ. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माहौल पहले तो गलत हो ही जाता था, तभी इसके मन में आया ना कि हार्मोनी मेंटेन करनी है। ये हम्म. तो चीजें बिगड़ जाती थी। हाँ. ठीक है, कि तो इसका पीछे मतलब शुरू में हारमोनी. हार्मोनी नहीं भी रही हाँ. होगी। हम्म. तो इसने अपने को थोड़ा सा अपना तेवर कम किया। लेकिन जब भी अपने तेवर को कम करती है ना, नहीं बोल पाती है या नहीं बोलती है, रोक लेती है अपने को, अपने गुस्से को काबू में करती है, तो क्या होता है, इसके अपने मन में एंटागोनिज्म चलता रहता है कि एम आई डूइंग राइट, क्या मुझे ये करना चाहिए? मैं गलत को तो बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या मुझे गलत बर्दाश्त करना सही है क्या? ये सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहती है।
और एक चीज पैसे का भी उसने कुछ बोला ना कि पैसा मांगना पड़ता है, तो वो हाँ, पैसा चीज मांगना उसको पड़ता है। शायद यस, पैसे का भी उसने बोला है, सही बोला एकदम। स्टार्ट कर दीजिए सर एनालिसिस। ठीक है, स्टार्ट कर दें। तो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा केस को। ठीक है, बहुत सिंपल केस है। तो इस केस में देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी ना, कि ये एक्चुअली मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है। सी इज माई वेरी ओल्ड पेशेंट एंड सिंस चाइल्डहुड हर फादर यूज टू कम फॉर हर ट्रीटमेंट, प्लस अपने उसे घर का ट्रीटमेंट भी करता था। तो ये बचपन से ही थोड़ी सी, बल्कि वो कलकत्ता कार की तरह थी देखने में, बहुत ब्यूटीफुल थी और थोड़ी स्टबर्न थी, जिद्दी लड़की थी ये बहुत। बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, और चूंकि इकलौती बेटी है तो ऐसे भी थोड़ा सा ज्यादा पैम्परिंग होती है। तो इसका जो है मेन कारण, कहाँ से प्रॉब्लम का कारण क्या था, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। नंबर वन जो कॉज था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो है कि losing the money. She worked very hard, but not get the money, not get the salary. तो वहां पर क्या बोली वो तो मेरा परिश्रम का पैसा था ना, मेरी मेहनत का पैसा था जो कंपनी ने नहीं दिया। ये तो बहुत गलत है। कम से कम मैंने जो काम किया था उसके पैसे तो मुझे देने चाहिए थे ना। बात तो वाजिब है ना। तो एक तो वहां से इसकी प्रॉब्लम से वो उसको बचा नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है। वो उसके दिमाग में बार बार कि मैंने 2 महीने काम किए और मुझे कोई सैलरी मिल रही। और कलकत्ता में क्या है कि केवल काम करना ही नहीं है, प्लस आने जाने के भी भाड़े लगते हैं, पैसे लगते हैं, समय लगता है। वो भी गया इसका। तो वो एकदम उसके दिमाग में जब बोलते समय ना, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है उसको, लेकिन मजबूर थी। कर क्या पाएगी, क्योंकि कंपनी, मैंने पूछा तो कंपनी बोले बाहर की कंपनी है, उसका केवल एक ऑफिस रहता है, बाकी कोई सेटअप यहाँ है ही नहीं। जस्ट केवल ऑफिस खोल के बैठे हैं, हम लोग काम करते हैं, बाहर से ही सारा काम होता है। तो सी कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट जो झमेला शुरू हुआ उसके मदर इन लॉ के साथ में, आफ्टर मैरिज। तो नॉर्मली व्हाट वुमेन वांट्स था ना, तो क्या एक्सपेक्ट करती है ना शादी के बाद, कि भाई ससुराल में जाएंगे, वहां हमें एक सम्मान मिलेगा, सास मिलेगी जो माँ की तरह होगी, हस्बैंड मिलेगा जो राम की तरह होगा, है ना, देवर होगा तो भरत की तरह होगा। ये कल्पना तो सबकी रहती है, थोड़े 19-20 होती है, लेकिन इसकी, और ये बहुत पढ़ी लिखी है, काफी हाईली एडुकेटेड है ना। जब फॉरेन कंपनी में जॉब करते तो जाहिर है कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी मदर इन लॉ टिपिकल पुराने जमाने की है। उसको तो बस ये काम ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे उसके तरह से होना चाहिए, वरना वो गलत है। तो वो टोकती रहती है हमेशा, जो है कहीं ना कहीं उसको ऑनर वुंडेड तो होगा ही ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रेस्टीज में लगेगी बात को। तो उसको लगता है कि अरे ये जो है खुद अनपढ़, वो मुझे सिखाएगी कैसे काम करना पड़ता है। So there is often a very strong quarreling with the mother-in-law because of all these things. So when her mother-in-law start abusing, she used to protest. उसको प्रोटेस्ट करेंगी, लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ा सा उसने अपने को ढाल लिया, देखे कि माहौल खराब होता है, मदर इन लॉ तो सुधरने वाली नहीं है, ये भी उसके दिमाग में चल रहा है ना। फिर वही माहौल रहता तो करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन कई बार जब नहीं बोल पाते तो उसके दिमाग में वो बातें हंट करती रहती हैं, नहीं बोल पाती है। थर्ड पॉइंट जो है, आफ्टर मैरिज और आफ्टर लूजिंग द जॉब हुआ, कि उसके जो सैलरी के लिए उसको डिपेंड होना पड़ता है। सी हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड्स फाइनेंशियल नीड, एंड दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग हर। कि लेकिन उसने क्या किया ना, और जानता है, हंस दी। वो हंसी के पीछे उसने अपने एम्बेरसमेंट को बहुत आ, अच्छे से छुपाया। बहुत स्मार्टली उसने हंसी के पीछे अपने एम्बेरसमेंट को छुपाया था, जबकि ऑब्वियस सी बात है, सभी मानते ही हैं, लेकिन इसकी डिग्निटी में लग रहा है वो नहीं भूल पा रही है। तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन भी है, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट तो ही है।
तो मेरी पहली जो एंट्री थी वो है एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग, और दूसरा पॉइंट था प्रोटेस्टिंग, और तीसरा पॉइंट था हाइडिंग हिमसेल्फ। तो चौथा पॉइंट क्या था? एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक। उसकी जो है एम्बिशन क्या है? हमें पैसे बनाने हैं किसी भी तरह से, हमें बहुत अच्छी सैलरी वाला जॉब लेना है, तो नहीं पुराने भी चीजें मेकअप हो जाए। तो इन चारों को लेने से क्या क्या रेमेडी आ रही है? तो सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला, सॉरी। प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट कर रही है ना, जो भी गलत होता है उसको छोड़ नहीं रही, प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दो रूब्रिक में ही आपको एलिमेंट्स ऑफ मनी लॉस एंड प्रोटेस्टिंग, दो ही रूब्रिक में हमारी मेडिसिन आ गई थी। ठीक है, हाइडिंग वन सेल्फ है, ये है आर्सेनिक एल्बम दिया था मैंने से। एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर इंडिग्नेशन विथ, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। एक तो उसकी सास मॉडिफाई कर रही है, जब मांगने जाती है तो इसे भी वो इज्जत में लगती है, यार मुझे मांगना पड़ेगा। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंड पॉजिटिवनेस भी था कि नहीं मैं वो कर लूंगी, मुझे वो जॉब मिलेगा। शी वाज सो मच पॉजिटिव अबाउट दैट, सो शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं लेकर तो आऊंगी, अच्छी जॉब ले लूंगी और वो मेकअप भी मुझे मेरा हो जाएगा, एंड शी डिड दैट। सो दिस वाज आर्सेनिक एल्बम जो मैंने एलएम पोटेंसी में दिया था, एंड वंडरफुल रिजल्ट। So now, do you have any question regarding this? Niman? नेट्रिमर भी किसी ने, नेट्रिमर बहुत पास चल रही थी। नेट्रिमर भी हाइड करती, वो भी बहुत ज्यादा सिक्रेटिव होती है, उसमें भी एंगर इंडिनेशन होता है, जो इस केस में बहुत ज्यादा क्लियर कट दिख रहा था। नेट्रिमर में भी मॉडिफिकेशन होता है ना, लेकिन नेट्रिमर इतना पॉजिटिव नहीं होता, एक नंबर। दूसरे, मनी को लेकर उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता उसको, उसको मनी से ज्यादा अपनी डिग्निटी की टेंशन होती है। यदि उसको फायर कर दिया, वो वहां भी मार के मुझे फायर कैसे कर दिया, मुझे फायर कर दिया, मैं क्या इतना वर्दलेस हूं? नेट्रेमर वहां से बीमार पड़ता। क्लियर हुआ मैम? नेट वाई नॉट नेट्रेम्यूर? हेलो? सर प्रोटेस्टिंग एक बार बताइए सर, प्रोटेस्टिंग कैसे? नहीं समझे किसका? प्रोटेस्टिंग। हाँ, प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्ट कब रूब्रिक करते हैं सर ना, एक बार। प्रोटेस्ट होता है ना, जैसे हम लोग अभी तो जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जब भी कुछ हमें लगता है जो ये गलत है, प्रोटेस्ट गलत चीजों के लिए किया जाता है ना, हो सकता है वो सही हो, लेकिन उसको बंदे को गलत लगता है, क्योंकि एक ही चीज के अगेंस्ट में दो प्रोटेस्ट होते हैं, एक समर्थन में भी होते हैं, एक विरोध में भी होते हैं। तो जो इसे गलत लग रहा है कि ये सास यहाँ पर गलत है, मदर इन लॉ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी बोलती है, तो वो उसको छोड़ती नहीं है, उसका विरोध करती है कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकती, ऐसा आपको करना गलत है। थैंक यू। जो चीजें गलत लगती है उसका प्रोटेस्ट में, लेकिन मारपीट नहीं होती, लेकिन आप वर्बली आप करते हैं, प्रोसेशन भी निकाल सकते हैं, घर में प्रोटेस्ट करते हैं कि मैं ऐसा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं समर्थन नहीं कर सकता इसका, करते हैं ना। तो एक विरोध में खड़ा होना, तो उसका विरोध करती है, लेकिन इस विरोध के कारण से कई बार घर की जो है ना सिचुएशन, हार्मोनी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो धीरे धीरे इसने एडजस्ट कर लिया मदर इन लॉ के साथ, ये सोच के कि चलो ये तो सुधरने वाली नहीं है, इसका तो काम ही बोलना है। लेकिन जब नहीं कर पाती है, तो उसके मन में भी थोड़ा सा क्या होता है ना, कि वो एंगर तो सप्रेस होता है ना, तो उससे भी प्रॉब्लम तो चलती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। दूसरी और एक रेमेडी आई थी, नक्स भौमिका, राइट? नक्स भौमिका बहुत पुअर कंडीशन में होता है। नक्स भौमिका देखा जाए तो बहुत कॉन्फिडेंट रेमेडी भी है और इंडिपेंडेंट रेमेडी है। आर्सेनिक इंडिपेंडेंट में नहीं है, लेकिन नक्स भौमिका इंडिपेंडेंट में भी है, उसे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना
कि ये इस तरह से प्रोटेस्टिंग में नहीं मिलेगा, अपने को हाइड करने का छुपाने की कोशिश नहीं करती है। वो जो है साफ साफ मुंह पे बोलने वाला बात है, साफ साफ बोलते कि हाँ मुझे ऐसा लगा, मुझे खराब तो लगता है, बहुत खराब लगता है। वो अपने को हाइड करने की कोशिश नहीं करती। तो यहाँ नक्सवामी अलग होती है, पर नक्सवामी की इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो थोड़ा सा भी चूचा चपाट एकदम सांस को ठंडा कर दिया होता है नक्स होती तो नक्स में इतना दमखम होता है, और इसमें भी दम है, ये भी कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रेस्टीज को भी तवज्जो दे रही है। बट हर जगह आपको मिल तो रहा ही है वो मेडिसिन। ट्यूशन 5 मिनट, ठीक है। और क्या रेमेडी आई थी? और एक प्लैटिना बोला था किसी ने। हाँ, प्लेटिना तो बिल्कुल अलग है। प्लेटिना होती तो वो उसकी डिग्निटी बहुत ज्यादा ही अलग होती है। प्लेटिना में भी अपने मनी को लेके बहुत ज्यादा रहता है कि उसको भी बड़ा बनना है, ये सब करना है। हो सकता है प्लेटिना में भी होगी, लेकिन एम्बिशन मनी टू मेक में प्लेटिना है क्या? एम्बिशियस वो भी होती है, और प्लेटिना फिर अपने मनी को लेने के लिए ना हर तरह का ये करना शुरू कर देती है ना। एम्बिशन एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल मीन्स, तो वो उससे कंपनी से पैसे निकाल लेती, चाहे वो कोर्ट में केस करके हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि बहुत लिटिजियस रेमेडी होती है शायद प्लेटिना, जहां तक मुझे पता है कि प्लेटिना फिर छोड़ती नहीं, कॉलर पकड़ के लेने वाली रेमेडी है, अपनी मेहनत के पैसे। है, बोलूं? ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? খুকি রোল দিবেন তো किसी को कोई क्वेरी है और कुछ पूछना है? ओके, अगर कोई क्वेरी है किसी को तो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, या अपने इग्नाइटेड माइंड्स के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। नेट्रम कार्ब से डीडी करने बोल रहे थे। हाँ, जस्ट जस्ट अ मिनट। सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ लिखा था उन्होंने, प्लम्पी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस है। और वो जैसे कलकरिया काप का था ना, प्लम्पी जैसे। हम्म। अच्छा अच्छा, वो उसके देख के आपने बताया था ना, हाँ, जैसे मैंने वर्णन किया था। हाँ ठीक है, लेकिन केवल उसी चीज पे सारी चीजें नहीं होंगी कि वो प्लम्पी है बोल के हम कार ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है उसकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई वो हमें देखना है। ठीक है, इसकी जो प्रॉब्लम है इसका ये शुरू कहाँ से हुई। तो उसके हिसाब से देखा तो हमारा सबसे पहले बात है उसके एलिमेंट फ्रॉम मनी लॉस, क्या वहां पर नेटम कार पड़ा हुआ है क्या? देखिए एक बार। दूसरी बात है, और भी यदि हम दूसरे और बाकी रूब्रिक में यदि जाते हैं, तो इसकी जो है दूसरी प्रॉब्लम है इसको एंगर इंडिग्नेशन विथ, ये मेन रूब्रिक था। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं नेट्रम कार्ब है क्या। वहां देखिए नेट्रम में पड़ी हुई है लेकिन कार्ब नहीं है। इवन कैलकेरिया, हाँ कैलकेरिया कार्ब है, लेकिन नेट्रम कार्ब वहां नहीं पड़ी हुई है। तो वहां नेट्रम का एलिमेंट तो है, लेकिन कैलकेरिया का ये सॉरी कार्ब का एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसलिए नेट्रम कार्ब से मैं अलग हो गया। नेट्रम कार्ब मेरे दिमाग में आई भी नहीं थी, आसपास भी नहीं चल रही थी। बहुत क्लोज में चल रही थी, नक्स मामिका बहुत ज्यादा क्लोज चल रही थी, सल्फर कहीं थोड़ी सी क्लोज चल रही थी, कैलकेरिया क्लोज चल रही थी, क्योंकि कैलकेरिया भी एलिमेंट्स ऑफ मनी लॉस में होती है। कैलकेरिया को भी जो है एम्बिशन होता है, पैसे वैसे और दिखाने का, शो ऑफ करने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। कैलकेरिया भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, लेकिन उसमें इतना दम नहीं होता है। कॉन्फिडेंस दिखाती है लेकिन दमखम थोड़ा कम होता है। तो और इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं करते, पर प्रोटेस्ट करने का दम तो इसमें होता ही नहीं। ये बराबर लेकिन अपनी मदर इन लॉ से प्रोटेस्ट कर रही है, जो गलत बात पर झुकती नहीं है जल्दी से। बाद में कभी कभी इसने थोड़ा सा झुकना शुरू किया ताकि घर का माहौल खराब ना हो, बस इतना ही था उसके लिए, अदरवाइज छोड़ती नहीं। ठीक है, अर्सेनिक को फैमिली इसलिए इम्पोर्टेंट मैंने होती नेट्रम कार्ड मेरे दिमाग में नहीं आया, नेट्रम कार्ड यहाँ होगी भी। है। जी। बाकी लियाकत दादा बताएंगे और सब
कितने अच्छे से डीडी कर सकते हैं। थैंक हम लोग उनसे थोड़ा सीखेंगे अभी। जी सर वो जब तो बताते ये हैं तो बहुत सर अच्छा हाँ बताते हैं। नहीं बिजी हो गए सर अच्छा अच्छा प्लीज, हाँ पेशेंट मेरा से टाइम, जी 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 हाँ ये थोड़ा समय मैच नहीं करता है। हाँ मेरा क्लिनिक टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है वाइंड अप सो करते हैं अगर थैंक किसी यू को कोई एवरीवन। क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और अपने यूट्यूब के चैनल पे भी पूछ सकते हैं इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और थैंक यू मनोज सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन आर्सेनिक एक डिफरेंट एंगल आज समझ में आया और इट वाज अ वंडरफुल केस जैसे हम व्हाट वुमेन वांट की सीरीज देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे इमोशंस अभी तक हमने देखे हैं जैसे लेडी को क्या चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए या फिर केयर चाहिए प्यार चाहिए तो ये सारी इमोशंस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनको अच्छे से हील कर पाए तो थैंक यू वंस अगेन और सर एवरी संडे सर का केस रहता है सो संडे को भी आप फ्रूटफुल बनाते हैं एवरी संडे को तो थैंक यू वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट आल्सो एंड थैंक यू डॉक्टर लियाकत सर and thank you my PHF team and thank you all the audience. Thank you so much. Have a nice थैंक day. यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।